ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કો સંગી જદુક, જગત કો સંગે જદુ, કેવલ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જસુ. દાદાજીનો હસતો મું, દાદાજીનું હસતું મોં, શમને દર્શન થાતા સુખ. તમને દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજે, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠારતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે મોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખો લાગે, દુનિયાભરમાં દુઃખ લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સૂનું લાગે, ફિરવું દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે ઓજી દાદાજી, હારે ઓજી પ્યારાજી, હારે ઓજી પ્યારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलाए। श्रेया नंबर 1, चेन्नई 2। श्रेया। હા જય સચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાટ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કદાપि પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો।
હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા તેની ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તેની ભાષા બોલે તો મૃદુ રુચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્ત વર્ણન ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલા કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ વિનય ન કર્ય જાય ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. Very good. Jai Sachidanand, Pyari Dada. Unmute करो प्यारे दादा. हाँ, त्रिमंत्र बुलाए प्लीज. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, સંતાનમ नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धांत, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याण, દિયાણ नमो वज्जायाणम, नमो वसायाणम, नमो लोई सव साहुणम, नमो लोवे साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासणो, सवपावपनासनं, પણાસન मंगलाणं च सव्वेसी, मंगलानां सर्वेस्मिन् पद्मं हवै मंगलम, परमं मवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सचिनायक. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मोनिका. मोनिका. दादा सुने क्या? हाँ, हाँ अब स्टॉप हो गया था. हाँ
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे तय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। Okay, श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हमें हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी बच्चे, फिर भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Itaksiba, separation prayer. જય સચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, તક્ષિબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હે તક્ષિબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, હે તક્ષિબા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. Jai Sachchidanand. Okay, very good. Okay, चलो ये 3 दिन में हैप्पी रहा आप? खुशी खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। इस 3 दिन में मैं हैप्पी थी। वेरी गुड। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। इस 3 दिन में मैं 2 दिन हैप्पी थी और आज मैं हैप्पी नहीं थी। क्या गया क्या क्या आज प्रॉब्लम क्लाउड में से आ गया? मैं आज करिश्मा के साथ झगड़ा हुआ। ओ तो उसके तो है, दैट इज शुड नॉट, आपका हैप्पीनेस उधर नहीं चला जाना होगा, बाद में दीपक बिहारी जाने से बात करने का होगा, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू डू आप योर ड्यूटी इन इसमें बाद में बातें करें। ओके श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं ये 3 दिन में से मैं संडे को हैप्पी नहीं थी। क्यों? बोलो बोलो, क्या 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 हो गया मैंने था? मैंने मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया और बहुत इनकम्प्लीट वर्क रह गया था। कब? आज स्कूल में कंप्लीट नहीं हुआ, कर नहीं पाए थे बिफोर स्कूल? श्रेया। नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया। और स्कूल में क्या हुआ? अ, डांट पड़ी। ओके, वाई क्यों नहीं हुआ था? मैं खेलने चली गई थी संडे को नीचे। क्या खेलने गए थे? मैं बैडमिंटन और हाँ, बैडमिंटन खेलने गई थी नीचे। ओके हिताक्षी। हाँ, जय सचिदानंद. मैं तीनों दिन हैप्पी थी. ओके वेरी गुड। आप लोग सब फैमिली मेंबर्स को जय सच्चिदानंद बोलते हैं उठ के? हाँ. श्रेया। स्कूल जाने से पहले, बाहर जाने से पहले।
दादा को बोलते हैं हाँ। कि स्कूल से आते वापिस नहीं, क्यों? वो घर से बाहर जाता है तो घर में आ गया का तो सबको पाकि जय सचिदानंद बोलना मांगता है ना। खुशी मैं स्कूल गई थी तब बोला था। बाद में खुशी हाँ, आपकी वॉइस स्टक हो गई। आपने मोनिका को कितनी दफा आज जय सच्चिदानंद बोला? 0। ओके दीदी को मोनिका, नहीं बोला। क्या आप लोग घर में रहते हैं क्या? जय सचिदानंद। हाँ मोनिका, जय सचिदानंद। मैंने घर से स्कूल जाते वक्त आशीर्वाद के साथ जय सचिदानंद बोला था। आते किसको? वक्त मैंने और सुबह उठ के मम्मी और पापा जो सुबह उठ के तीनों दोनों बहनों को को जय सुबह सच्चिदानंद बोलते हैं। सुबह उठ के जय सच्चिदानंद बोलते हैं। ओके, और लास्ट सिर्फ थिंग क्या पापा है को। कि पापा इज फेवरेट है उनले, और एडजस्ट कितनी दफा रिमाइंड करना पड़ेगा? नहीं एडजस्ट नहीं नहीं, हुआ, पापा का एडजस्ट कितनी दफा बोलना मैंने आज पड़ा? सुबह हाँ, क्या कितनी दफा आपको खाने में एडजस्ट करने का पड़ेगा? आज मैंने चुपचाप खा लिया था। सैटरडे संडे सैटरडे संडे भी मैंने खा लिया था। खुशी हाँ, मैंने खा लिया था सैटरडे। श्रेया हाँ, मैंने खा लिया था। तकसीबा मैंने खा लिया था। ओके, और लास्ट थिंग है वो हमने भेजा था हेल्थ का बारे में, किस उस किसी ने रीड किया था? मोनिका, खुशी नो, श्रेया नो। ओके, तो कल कल देख के आओ, उसमें बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना मिला उसमें। ओके ओके बिहारी दादा, आपने सुना कि घर पे उन लोग जय सच्चिदानंद हैबिट नहीं करते, तो उन लोग को बोलो, बताइए कि जय सच्चिदानंद का कितना फायदा हो के बोलने का, क्यों बोलने का। और बराबर। और दूसरा ये श्रेया ने नहीं किया होमवर्क, चली गई और आज स्कूल में डांटा, और मोनिका और करिश्मा के बीच में क्या हुआ इसकी थोड़ी बातें करने। हम्म सबसे पहले तो घर में सुबह में जब हम उठते हैं तो एक दूसरे को जय सच्चिदानंद कहने की, बोलने की प्रथा चालू करने की है। सभी को बोलने का है। जिसके साथ हम कम बोलते हैं, कम बातचीत करते हैं, वो घर के जितने भी सदस्य हैं तो हम जय सच्चिदानंद बोलते हैं। तो जय सच्चिदानंद का मतलब क्या है कि आप सीधा रियल व्यू पॉइंट पर आ जाते हैं। भगवान जो अंदर है हर एक के भीतर, तो वो भगवान का दर्शन करके आप जय सच्चिदानंद बोलते हैं तो पहली 2 आज्ञा का अनुभव होता है, पहली 2 आज्ञा की प्रैक्टिस भी होती है। क्योंकि ये चर्म चक्षु से आपको मोनिका दिखाई देगी, मोनिका को खुशी दिखाई देगी, लेकिन भीतर में शुद्धात्मा है तो वो देखने का, अभ्यास करने का है।
ये अभ्यास के बिना नहीं रहेगी, ये दृष्टि टिकेगी नहीं। ये ज्ञान की जो जागृति है वो अभ्यास के बिना नहीं टिकेगी। जैसे हम मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं ना, हाँ के ना? हाँ। जब भी हम मूर्ति का दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो भगवान का दर्शन करते हैं तो कितना हो भाव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये हमारे घर के जो रिश्तेदार है, घर के सदस्य है, वो जीवित मूर्ति है, हरती फरती मूर्ति है, और हकीकत में अंदर भगवान है। तो इसलिए हर एक सदस्य को जय सच्चिदानंद बोलते हैं, मतलब अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है उसको लक्ष्य में रखकर हम ये पहली 2 आज्ञा का अभ्यास करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रयोग है, ये सबसे बड़ा शुद्ध उपयोग है। सुनते हो ना आप? आप लोग सुनते हो कि कहीं आपका ध्यान तो कहीं और है। जब सुनते हैं। कोई बात करता है तो उसके सामने दृष्टि होनी चाहिए। आप लोग तो नीचे देखते हो, नीचे क्या देखने का है? तो सामने दृष्टि रख के बात सुनने की है क्या? इसमें कोई प्रश्न उठता है तो वो भी बोलने का है। तो ये हर एक को जय सच्चिदानंद बोलना मतलब शुद्धात्मा भगवान का लक्ष्य सहित वो व्यवहार हुआ, बराबर। तो 2 आज्ञा का उपयोग भी हो गया और सब में शुद्धात्मा देखे, जय सच्चिदानंद बोला, मतलब वो शुद्ध उपयोग भी हो गया। जय सच्चिदानंद। और दूसरी बात कि जो हमारा होमवर्क करने का है वो होमवर्क करने का बाकी रह जाता है और खेल कूद में चले जाते हैं। तो खेलना है, कूदना है, वो भी है, लेकिन होमवर्क को बाकी रख के करने का नहीं है। होमवर्क करने का है और बाकी के टाइम में हमको खेलना है, घूमना है, वॉकिंग करना है, जो भी करना है वो करना है, बराबर। हिताक्षी? नहीं, श्रेया 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 अब बोलने को छूट है। क्या? आप बोल सकते हैं, आपके साथ बात करता है बिहारी दादा। हाँ, तो उसको रखो ना फिर सामने। जिसके साथ बात हो रही है उसको सामने रखो। रजनीकांत भाई, हाथ ऊंचा करो श्रेया। श्रेया बिहारी आनंद जी, आज जो श्रेया देखा नहीं? बराबर। श्रेया, बात समझ में आई? होमवर्क का जो दिया है वो हमारी पहली फर्ज है। होमवर्क करना है और बाद में घूमना है, खेलना है, जो भी करना है वो भी करना ही है, लेकिन होमवर्क को छोड़कर नहीं, होमवर्क के साथ करना है। बात समझ में आई? हाँ। आप लोगों ने खेल लिया लेकिन होमवर्क तो बाकी रह गया, तो पूरा टाइम खेलने कूदने में गया। तो कैसा नहीं करना है। पहला हमारी फर्ज है पढ़ाई। हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें जो होमवर्क देते हैं, चाहे वो पढ़ने का हो, लिखने का हो, जो भी होमवर्क है, तो वो होमवर्क करने के बाद खेल कूद का टाइम रखने का है। बात समझ में आई श्रेया? हाँ, टीचर ने क्या ये बताया, क्या बोला टीचर ने? कि नेक्स्ट टाइम निकल करके लाना, नहीं तो फिर क्लास में नहीं बैठना देगा। ओह, अदरवाइज क्लास में नहीं बैठने दे। ओके। बिहारी दादा सुना?
नेक्स्ट हाँ, टाइम करेगा तो रिपीट होगा तो क्लास में नहीं बैठने दे। कौन सा और उसको सब्जेक्ट शिक्षा था? वो कौन सा सब्जेक्ट था? सोशल। सोशल, ओके। और शिक्षा तो होती ही है, तभी तो विद्यार्थी मैडम का सुनते हैं। अगर शिक्षा नहीं करेगी तो कोई सुनेगा नहीं, कोई होमवर्क भी नहीं करेगा। तो ये जो बताया है मैडम ने वो अच्छी बात है, लेकिन फिर कभी ऐसा मौका ना आए, ऐसा हमको करने का है। फर्स्ट होमवर्क, बाद में खेलने कूदने का। खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पहले। पढ़ाई को, होमवर्क को बाद करके खेलने का नहीं है, होमवर्क के साथ खेलने का है। श्रेया समझ? हाँ। वो जरूरी है। तो कोई क्लास में जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी पढ़ाया है, तो उसका रिपीटेशन हो जाए, आपको याद रहे, इस आशय से होमवर्क देते हैं। लिखने का दे, चाहे मुखपाठ करने का दे, चाहे कोई भी होमवर्क दे, तो वो रिपीटेशन होता है, रिपीट होता है, तो फिर आपको वो याद रह जाता है। तो अच्छी बात है ना होमवर्क तो, हाँ, कि गलत बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, तो वो हमेशा लक्ष्य में रखने का है। बराबर। बराबर, हाँ। ओके। अभी मोनिका, मोनिका आज हैप्पी नहीं है, तो वो ड्यूटी बजा रही थी। तो मोनिका, ये उसमें हैप्पीनेस है कि नहीं? हैप्पी से बिहारी दादा से बोल, क्या हुआ बोलो। दादा, करिश्मा जो मेरे पास एक चीज थी और करिश्मा उसके लिए जिद पकड़ रही थी। मैंने कहा पहले जाके मम्मी से पूछ लो, बाद में। तो उसने नहीं माना और मेरे ऊपर चिल्लाया और मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने भी चिल्लाया। तो वो उसके ऊपर भी बहुत चिल्लाया, तो मैं उस समय शांत हो गई। तब मुझे अंदर से बहुत अभाव हुआ उसके प्रति। नहीं, ये तो क्या है कि घर में है, ऋणानुबंध है, तो ये हो जाता है। लेकिन हमारे भाव में क्या होना चाहिए कि ऐसा चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं है। बातचीत कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन चिल्लाने से कोई फायदा है? वो नहीं। चिल्लाती है तो आप भी चिल्लाती है, तो उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? तो चिल्लाने से ज्यादा बातचीत का काम, नॉर्मल टोन में बात करो। समझे? हाँ। हाँ। चिल्लाना कब होता है? ना, मैं जैसा बोल रही हूं वैसा ही करो, तो वो भी चिल्लाती है कि नहीं मैं तो लूंगी। तो दोनों फिर जोर जोर से बोलते हैं। फिर क्या होता है घर में? आनंद का वातावरण होता है कि टेंशन का? टेंशन था। तो हम तो टेंशन क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है, आप लोगों ने ज्ञान लिया है ना, कि बाकी हाँ, है? ज्ञान ले हाँ, लिया है। हाँ, ज्ञान ले लिया है तो उसका उपयोग करने का है। हमको भी टेंशन ना होए और सामने वाले को भी टेंशन ना होए, इस तरह ज्ञान दृष्टि का उपयोग करके सभी के साथ व्यवहार करना है। समझे? खुशी? हाँ। हाँ। तो क्या करेगा मोनिका अभी? देखो, आप बड़ी दीदी है तो उसमें ऐसा नहीं होना मांगता है कि वो आप बोलेंगे वो करेंगे, राइट? दादा बस वो भी शांत होकर बात कर सकते हैं ना, क्यों चिल्लाना होता है? जब ये- वो वो चिल्लाती वो तो मुझे छोटी है, एक
वो छोटी है ना, आपसे कितनी छोटी है? 5 साल। हाँ, तो समझ में भी फर्क होगा ना। हाँ। हाँ, तो वो चिल्लाती है तो हमको भी चिल्लाने का है। नहीं। वो एज फर्क और समझ का फर्क देखने का नहीं है। देखने का। बस, वो तो हमारा टेस्टिंग है। हम कितने ज्ञान में रहते हैं, हम कितने एडजस्ट होते हैं, वो करिश्मा के द्वारा हमको पता चलता है। वो हमारा टेस्टर है कि ज्ञान हमको पचा के बराबर पक्का हुआ है कि नहीं। तो कहाँ पता चलेगा? तो करिश्मा के पास। उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, मोनिका के साथ कैसा व्यवहार होता है, खुशी के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो हाँ। हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमको शांति से समझ के साथ बात करनी है। मेरे मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो, ऐसे भाव तो हम कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। कर सकते हैं, हो जाता है। करना नहीं है फिर भी हो जाता है, तो वहां प्रतिक्रमण करने का है बस। हाँ। बात समझी? हाँ। हाँ, बस। ओके, यही हाँ बोलो बोलो। लक्ष्य में रखने का। हाँ, 5 आज्ञा के साथ व्यवहार की गुठन करने की है। मोनिका भी रिलेटिव है, करिश्मा भी रिलेटिव है ना, कि रियल है? रिलेटिव। वो आपकी बहन है तो रिलेटिव है कि रियल है? रिलेटिव के रियल? रिलेटिव। हाँ, तो रिलेटिव यानी हिसाब के अधीन। तेरा और उसका जो हिसाब है, तो वो इस हिसाब के अधीन चलेगी, तू भी हिसाब के अधीन चलेगी। लेकिन भाव में ये होना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास है, वो सभी फाइलों का संभाव से निकाल करना है। ये हमको तय करना है। क्या करना है? तय करना। हाँ, जब जब भी ऐसा मौका है, कोई अग्रिम फाइल आ जावे, तो अंदर से हमको ये तय करने का है कि हे दादा भगवान, ये प्राप्त जो संजोग है, वो संजोग को सुमेल करके उसका संभाव से निकालो, ऐसी हमें शक्ति दो। तो ये 5 आज्ञा का उपयोग करना है। तो जितना वो 5 आज्ञा का उपयोग होगा, 5 आज्ञा की समझ का उपयोग होगा, इतनी भीतर से स्थिरता बढ़ेगी, इतना अंदर समाधान रहेगा। अभी तो हमको समाधान नहीं रहता। वो करती है तो मैं करूं, उसने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा किया। आपके पास ज्ञान का समाधान कहाँ है? समझे? हाँ। तो ज्ञान से ज्ञान से समझने का है संजोग। वो करिश्मा है, मेरी बहन है, छोटी है, लेकिन वो रिलेटिव है। रिलेटिव यानी हिसाब के अधीन, कर्म के अधीन। जिसका जिसके साथ जैसा कर्म है, वो कर्म के अधीन वो चलेगी, और आप भी चलेगी। हाँ। लेकिन तय क्या करना है कि भाई हमारे ऐसा जीवन जीना है। बराबर? हाँ। तो जो हम जो तय करते हैं, जो हमारा निश्चय है, वो कुदरत में जाता है कि मुझे इसके साथ एडजस्ट होना है। ये जो फाइल है, तो उसका संभव से निकाल करना है। वो आप जैसे ही तय करती है, तो कुदरत आपको शक्ति देती है। हाँ। ये प्रयोग करना। बराबर? हाँ। हाँ। ओके,
वेरी गुड। तो अच्छा, आज वेरी इम्पोर्टेंट चीज बिहारी दादा ने बताया। जय सच्चिदानंद ग्रीटिंग एवरी पेपर इन द। आप इधर आते हैं तो क्यों जय सच्चिदानंद बोलते हैं? उन्हें कहा सबको जय सच्चाई बोलने का, घर के हर एक सदस्य को, महात्मा नहीं है तो भी बोलने का है। जय सच्चिदानंद से ही हमारा व्यवहार शुरू होना चाहिए और खत्म भी जय सच्चिदानंद से ही होना चाहिए। और एवरी टाइम घर बराबर। के बाहर। सब बच्चों को समझ में आ गया? हाँ। हाँ। ये घर में व्यवहार करने का है। घर में से बाहर जाता है तो जय सच्चिदानंद हमारे बोलेगा, फ्रेंड सर्कल आके ही है, बोले। फ्रेंड सर्कल के साथ भी यही व्यवहार। समझ में हम आता है लोग ना? भी हम लोग भी कॉलेज में नौकरी करते थे, तो कॉलेज में नौकरी करते थे तो जो सभी लड़का लड़की जो कॉलेज में होती है, तो उसके साथ भी हम जय सच्चिदानंद का व्यवहार रखते थे। जितने प्रोफेसर लोग होते हैं वो सभी के साथ जय सच्चिदानंद का व्यवहार। जब भी मिलते हैं जय सच्चिदानंद, अलग होते हैं तब भी जय सच्चिदानंद। तो ये व्यवहार हमारे हर एक व्यवहार में, हर एक रिलेशन में वो आ जाना चाहिए। बराबर। हाँ। हाँ। तो इसका ये इवन घर के बाहर जाते पहले आके वापस, वो तो ये है ना। जाते समय और वापस आते तभी दोनों टाइम पे जय सच्चिदानंद का व्यवहार घर में रखने का है, सभी जगह पर। प्रैक्टिस पाड़ो। और क्यों रखने का, उसके क्या फायदा होगा श्रेया? हाँ। फायदा साउंड नहीं है। तो इताक्षिबा, इताक्षिबा, हाँ। क्या फायदा होगा? और फायदा ये होगा कि उनके आशीर्वाद मिलेंगे हमें। और नहीं, हम जय सच्चिदानंद बोलते हैं ना, तो हर एक के भीतर में जो शुद्धात्मा भगवान है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। हिताक्षी बा का मूड बदलता रहता है, कभी हंसती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी रूठती है। तो हिताक्षी बा का मूड बदलता रहता है, लेकिन भीतर में जो शुद्धात्मा है वो हमेशा शुद्ध ही है। तो जब भी हम एक दूसरे को जय सच्चाई बोलते हैं तो वो शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखते हुए बोलते हैं। सामने वाली व्यक्ति का व्यवहार हमको पसंद नहीं आए तो भी भीतर में तो शुद्धात्मा है ना, वो तो शुद्ध ही है ना। तो इस तरह से वो हमारी समझ डेवलप करने की है। बराबर। खुशी, जय सच्चिदानंद बोल से क्या फायदा होगा? हमारे अंदर के जो हम जय सच्चिदानंद बोलते हैं तो उनके अंदर के भगवान को हम नमस्कार करते हैं और उनके ब्लेसिंग्स आती है मिलती ओके, तो मोनिका को ब्लेसिंग नहीं लेने का है? लेने का। मोनिका आपको जो करिश्मा का नहीं लेने का है? लेने का है ना। हाँ, बिहारी दादा ने क्या बोला? करिश्मा इज योर टेस्टर। हाँ। कि आपका मगज ठिकाने का नहीं है। वो तो अभी छोटी है ना, ही शी इज अ टेस्टर। ओके, हाँ। ओके, तो ये कंटिन्यू करो और एडजस्ट एवरीवेयर। खाने में वो जरा एवरीडे रिपोर्ट लेने का है, खाने में एडजस्ट हुआ कि नहीं, बाद में स्टडीज में लेगा। और एक्सरसाइज हमने में, किया था। हाँ बोलो। खाने में जो भी आए वो दादा भगवान से शक्ति मांग के खाने का है। अंदर भले बिलीफ में रहे कि मुझे नहीं पाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वैसा है, लेकिन उसके सामने हमको प्रयोग करने का है। वो शक्ति मांगने की, एक हे दादा भगवान मुझे समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो। तो ये शक्ति मांग कर खाने का है।
हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाकी दुनिया वाले तो खाते हैं ना। हाँ, घर में और लोग भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। हाँ, तो फिर हमारी जो बिलीफ है वो बिलीफ को तोड़ने के लिए, क्योंकि आप बिलीफ के आधार पर ही चलते हो, लेकिन वो बिलीफ से मुक्त होने के लिए ये प्रार्थना करने की है, हे दादा भगवान मुझे समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो। 5 बार बोलकर फिर खाने का है, तो अपने आप वो बिलीफ टूट जाएगी और आप खाएंगे तो आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे कि नाराज होंगे? खुश होंगे। खुश होंगे। समझे? हाँ। हाँ, चलो। ओके ओके, तो किसने प्रेयर किया था कि नहीं किया था ये वीकेंड में खाने के पहले? दक्ष, दादा की थी। वेरी गुड। श्रेया, की थी मैंने। दफा एवरी डे थ्री टाइम्स? नहीं, 2 बार की थी। ओके, मीनाक्षी वाह, हाँ, मैंने तीनों दिन किया था, 2 टाइम्स। मनिका, हाँ, मैंने की थी 3 टाइम्स डेली। ओके, आप सब दूसरे को करवाते हैं कि नहीं? दोनों करती भी नहीं है। मैं कहती हूँ, याद भी दिलाती हूँ, फिर भी। कुछ कुछ बात नहीं, उन लोग को बोलने का कि चलो प्रे करें, उन लोग करने का है कि नहीं, अप टू देम ना। वो बोलने का चलो प्रे मैं करती हूँ, तो जोर से बोलना है। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, प्यारी दादा, अभी हम पद सुनेंगे ओके। चिनाई सिस्टर से। ओके, दिखाई देता है प्यारी दादा? हाँ, दिखाई दे। ओके, क्योंकि इन लोग को तो गुजराती नहीं आता है, तो आपको ही देखने का है। ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद। હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો. સંસારે અબુદતા પ્રગટો. હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો. સંસારે અબુદતા પ્રગટો. संसारी नाव संकीर्णा सर्वत्र एडजस्टमेंट हो. कोई ना दोष ना देखो, जाति संपूर्ण शुद्धि हो. पूरी थई गले पापोना अपनी सिद्धि तिवारो. कर्मणि पापे नाश हो. હવે તો મોક્ષે જાવું છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નાવો. સંસારે અબુદતા પ્રગટો. કોઈ પણ જગત સંયોગે કશાયો નિર્મૂળો જ છે. સૌને સુખદાયી વાણી निर्वरी वात रीति हो. परम विनय वर्तन हो. निरंतर कृपा बरती हो. संपूर्ण शुद्ध चारित्र हो. અમે તો મોક્ષે જાવું છે,
બીજું કોઈ વિકલ્પ ના સંસારે અબુધતા પ્રગટો જય સચિદાનંદ जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया पद आपने गाया। अच्छा, तो હવે તો મોક્ષે જાવું છે, उसका मीनिंग मालूम है? हाँ मुझे मोक्ष जाना है वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो बिहारी दादा, उन लोग को तो मालूम, गुजराती नहीं आता है, तो एक्सप्लेन करो कि एक सब। नहीं, उसको उसको जो समझना है वो पूछ सकते हैं, बात करें। इसमें संसारी नाव संकीमा सर्वत्र एडजस्टमेंट हो। बराबर। हाँ उस जैसे adjustment क्या कर जैसे हम समुद्र में नाव में बैठकर जाते हैं, हाँ सभी लोग एक तरफ बैठेंगे तो क्या होगा? नाव डूब जाए नाव पलटी मारने देगी ना। हाँ तो ये समुद्र में जो नाव है उसमें वो पलटी न मार जावे, बुड़ न जावे, इसके लिए भी हम एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? कि दो इधर बैठो, दो इधर बैठो, बैलेंस करो, करते हैं ना। करते हैं। तो इसी तरह ये हमारा संसार है, ये संसार रूपी सागर में ये नाव साथ में है हमारे। तो ये संसार में सभी जगह पर हमारा एडजस्टमेंट हो, ऐसी हमारी भावना है। और किसी का भी मैं दोष ना देखूं, और मैं संपूर्ण, मेरी जात संपूर्ण शुद्ध होए, ऐसा हमारी प्रार्थना है। बराबर। हाँ और ये સૌને સુખદાયી વાણી નિર્ભરી વાયત્રી थी वो हाँ, हाँ लेकिन मेरी जो बानी है तो हर किसी के लिए, सबके लिए बिना वैर रखे निर्दोष वाणी हो, ऐसी हमारे, ऐसी आप हमें शक्ति दो। हाँ क्योंकि ज्यादातर बानी से ही दुख होता है ना। हाँ दूसरों की बानी से हमको दुख होता है और हमारी बानी से सामने वाले को दुख होता है। कोई किसी को दुख देना चाहता नहीं है, फिर भी एक दूसरे के व्यवहार से, बानी से एक दूसरे को दुख होता रहता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमारी भूल है। तो वहां हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो वाणी है वो हर किसी को सुख होवे, और बिना वैर मैत्री भाव से वो हमारी वाणी बहती रहे, ऐसा आप हमें शक्ति दो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ समझे? हाँ कोई पण और જગત સહયોગી જગત સહયોગી કશાયો નિર્મૂળ છે हाँ, इसका એટલે આ જગતમાં બધા સંજોગો જ ભેગા થાય છે આપણને। हिंदी हिंदी આપણે हिंदी। સ્કૂલે જઈએ છે, મમ્મીની સાથે હોઈએ, પપ્પા સાથે હોઈએ, બહેનો સાથે હોઈએ, તો આ બધા સંજોગ છે। શું છે? સંજોગ બધા સંજોગ છે, જુદા જુદા સંજોગો ભેગા થાય છે ને। તો આ સંજોગોમાં મારી અંદર જે કસાયો છે એ बिहारी કસાયો आनंद जी, निर्मूल हो। बिहारी आनंद जी, हाँ हिंदी में बोलिए प्लीज। हाँ, तब तो ये लोग हिंदी समझते होंगे। हाँ हाँ
मोनिका, हिंदी हाँ में समझ लेते हो दोनों हाँ। कि थोड़ा थोड़ा? हमें गुजराती नहीं आती है, हिंदी आती है। हिंदी आती है, बराबर। तो ये जगत में मोनिका को जो जो मिलता है, खाने का संजोग है, सोने का संजोग है, खेलने का संजोग है, कॉलेज का संजोग है, मम्मी मिलती है, बहनें मिलती है, ये सब संजोग है। क्या है? संजोग है। हाँ। तो ये सभी संजोग में मेरे अंदर कसाय भाव ना हो, मतलब के क्रोध मान माया लोभ खड़ा ना हो, और खड़ा होए तो निर्मूल हो, ऐसी आप हमें शक्ति दो, ऐसी हमारी ये भावना है। तो इस तरह ये पूरा जो पद है वो भावना के रूप में है कि हमें ऐसा चाहिए, हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी वाणी ऐसी हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो। तो सभी में भावना की है। क्या क्या किया है? भावना। भावना। भावना यानी नया बीज। कि अभी ऐसा नहीं है, अभी मोनिका का व्यवहार ऐसा ये पद में लिखा है ऐसा नहीं है, लेकिन हम भाव तो कर सकते हैं ना कि ये जो जो मेरी गलतियां हैं, ये जो जो मेरी वीकनेस है, वो सभी वीकनेस दूर होए, इसके लिए ये पद के अंदर प्रार्थना है, भावना है। बराबर। भावना का हाँ मीनिंग मालूम है खुशी? हाँ क्या? हाँ। हम उनके लिए भाव होता है। क्या भाव भाव भाव। का? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाव? हमारे अंदर बाहर मम्मी जब भी काम देती है तब हम बाहर से मना करते हैं, बट हमारा भाव अंदर से नहीं, हम मम्मी की बात सुननी चाहिए, तो वो नया पेज होता है। नया। वो मम्मी की हालत को समझने का है। वो सबके लिए काम करती है ना, ये हाँ, खुद के लिए करती है? सभी का टाइम सबके। संभालना पड़ता है ना, सभी का टाइम संभालना पड़ता है। कोई मॉर्निंग में जाता है, कोई 10 बजे निकलता है, कोई 9 बजे निकलता है। तो सभी का टिफिन तैयार करना है, सभी का नाश्ता बनाने का है, कितना सारा व्यवहार होता है उसके पास। तो इसको जब वो हेल्प मांगती है तो अवश्य देने का है। कोई भी काम है बाजू पे रख कर, वो जब आपके पास हेल्प मांगती है कि ये जरा कर डालो, ये जरा कंप्लीट कर दो, तो ये अवश्य करने का है। बात समझ में आई? हाँ हाँ भाव मीन्स विश, टू विश. हाँ Okay? हाँ To wish. क्या? I want to be like this. ये अपने बिहारी दादा ने बोला ना कि हमको एडजस्ट करना होने का है अपना, वो क्रोध मान माया लोभ वो कसायो है, और निर्मूल. निर्मूल का मीनिंग क्या होता है? चॉप पीपल ऑफ फ्रॉम द रूट्स. ओके. हाँ वो हमको दादा भगवान के पास प्रार्थना, वो बिहारी दादा ने बताया. अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, सो इसलिए ये पद में सब ये है. और अभी उसमें क्या है, कोई किसी का दोष नहीं नहीं, देखता तो आप. उसको पूछने दो। हाँ, उसको क्या जानना है, उसको क्या इसमें से क्या समझना है, वो उसको पूछने दो। खुशी, मोनिका, हाँ। दादा मोर अंडर. हाँ. आपकी वॉइस बीच में कट गई थी। अच्छा, आपको दूसरा जानने का है पद में? नहीं। ओके, तो
आप इधर बिहार ने बोला कि दोष तुमको देखने का नहीं, उस प्रसक्ति दो, तो आप दूसरे का दोष देखते हैं, हाँ तो बातें करो बिहार जाए कि दोष नहीं देखे ऐसे ये क्या करने का। किसी भी व्यक्ति का हमको दोष न दिखाई दे। अभी तो क्या है, दोषित देखते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो कर्म का हिसाब है, वो कर्म का हिसाब अभी, तो मैं किसी व्यक्ति का दोष ना देखूं, मगर मेरा जो उदय कर्म है वो उदय कर्म को मैं देखूं। मेरा उदय कर्म दिखाई देगा तो सामने वाली व्यक्ति निर्दोष समझ में आ जाएगी। ये ऐसी भावना है। और सभी संयोग के माई जितने भी पूरे दिन में संयोग मिलते हैं, वो सभी संयोग में मैं शुद्धात्मा भाव से हर एक संयोग का ज्ञाता दृष्टा बना रहूं, मैं मेरे स्वभाव में रहूं, ऐसी ये भावना है। हाँ। खुशी, आपको किसका दोष दिखता है? मैं मम्मी, दीदी का देखती हूँ, सभी का देखती हूँ। कभी कभी दीदी का, मम्मी पापा, टीचर, फ्रेंड, सब देखते हैं कि नहीं? साथ देखती हूँ। हाँ, तो पूछो दीपक को, बिहारी दादा को जादू दो कि बंद हो जाए। जहां जहां सामने वाले का दूसरों का दोष दिखाई देता है, वहां हमें क्या समझना है ज्ञान के आधार से। तो जो भी व्यक्ति के साथ व्यवहार होता है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड के साथ, तो हमको पसंद नहीं है वैसा व्यवहार भी होता है। वो क्रोधित हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसमें मैं मेरा उदय कर्म देखूं कि मेरा कर्म का उदय है, इसलिए सामने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो मैं इसमें प्रत्येक संयोग के अंदर मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं, मैं शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा समझ रहे, ऐसी समझ पक्की रहे, ऐसी ये भावना है। हाँ हाँ। तो ऐसी भावना हो गई तो सामने वाला दोषित नहीं देखेगा, राइट बिहारी दादा? हम्म। ओके। हाँ। बहुत बढ़िया पद है। चांस मिलने को कंप्लीट करना नेक्स्ट टाइम, ओके? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप भाई। बदन है जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हरियाणा जी जय सच्चिदानंद जय जी। सच्चिदानंद। एक पहले ये मुझे पूछना था कि जो केवली होते हैं उनमें उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनकी पंचेंद्रिय कैसे होती है, वो बताएं। क्या होता है? जो केवल ज्ञान जिनको प्राप्त होता है हाँ उनकी हाँ प्रकृति हाँ। कैसे होती है, उनका उनमें पंचेंद्रिय जैसे जो चल रहा है वो उनके कैसे होता है। तो केवल ज्ञान होता है तो प्रकृति भी शुद्ध हो जाती है, सभी शुद्धि होती है, भीतर की बाहर की, तभी ये केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होता है तो फिर उसकी जो प्रकृति है बिल्कुल सहज हो जाती है, बिल्कुल सरल सहज और उदय के अधीन चलने वाली, तो उनके ऐसी पंच प्रकृति हो जाती
कि उनके पंचेंद्रिय में भी कोई दोष नहीं रहता है, मतलब जैसे उनका सुनने में, चलने में, ऐसे जो है जो नहीं, कहीं पर भी किसी का भी दोष दिखता नहीं है, क्योंकि उसके पास केवल ज्ञान है। मतलब जो आज के टाइम में लोगों को रोग होता है और वो होता है, तो उनके उनके उनको रोग वगैरह नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल क्लियर, अच्छा। कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे एक शेयर करना है, वो मैं आपको शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ करो। एक करमनु करमनु सिद्धांत पुस्तक में से, करमनु सिद्धांत शु, आप पढ़ेंगे? हम्म। किधर से स्टार्ट करने का? यहाँ ओके ओके। प्रश्नकर्ता कहे, कर्मनो सिद्धांत खरो के नहीं? દાદાશ્રી કહે, આખું જગત કર્મનો સિદ્ધાંત જ છે, બીજું કશું છે જ નહીં, અને તમારી જ જોખમદારીથી બંધન છે. આ બધું પ્રોજેક્શન જ તમારું છે. આ દેહે તમે જ ઘડ્યો છે. તમને જે જે ભેગું થાય છે એ બધું તમારું જ ઘડેલું છે. આમાં બીજા કોઈનો હાથ છે જ નહીં. હોલ એન્ડ સોલ રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારી જ છે. આ બધી અનંત અવતારથી. हाँ, ये थोड़ा इस पे, और ये वैसे जो हाँ, हम ये जो मुझे लगता है कि ये जो हम पूरा जो विज्ञान है, इसका सार यही है कर्म का, ये सिद्धांत का। बस वो जो है वो उसको उसको लेकिन हमको वो जो होता क्या है कि उसमें ये समझ में आता है, लेकिन वो विचार जो है उसके उल्टे आते हैं कि दूसरे को, जैसे आपने बताया, हाँ, दोष इसमें क्या है कश्यप जी, ये अभी जो ये सिद्धांत जो है कि मेरा ही हिसाब है इसलिए मुझे भुगतना पड़ता है, तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया है। लेकिन पूर्व की जो दृष्टि है, पूर्व की जो समझ है, वो व्यक्ति को गुनहगार देखती है, सामने जो दिखाई देता है उसको गुनहगार देखती है, और समझ ये है कि मेरा ही हिसाब है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पर भीतर में हमारे मन को हमें ये समझ देने की है कि हमको जो जो भी मिल रहा है, सुख या दुख, वो हमारी जोखमदारी का बंधन है। हमने जो जो भाव किया है, मतलब कि जो जो प्रोजेक्शन किया है, उसके आधार से, जो जो भाव के उसके आधार से ये देह हमको मिलता है। ये देह का गढ़तर होता है, हमारे कर्म के अधीन मिलता है ये, और वो हमारा ही गढ़ा हुआ ये हमारा शरीर है, तो उसमें और किसी का भी दोष नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ये एक जैसे अवतार हमारे से नहीं है, अनंत अवतार से। हमारे जैसे अंदर परमाणु होंगे, वैसे ही बाहर, वैसे ही हमको हमारे सामने प्रकट होगा। हाँ, बाहर वैसा ही मिलता है। हम्म, ये तो आज आज जो तभी तो वो आज जो परमाणु खपेंगे ना। अगर जो आज हमारे पद भीतर में गए, जो परमाणु है, जैसा भी परमाणु है, तो वो परमाणु के हिसाब के अधीन सामने वस्तु, व्यक्ति, संजोग मिलता है। तभी तो हमारे जो परमाणु है, क्रोध के परमाणु है, लोभ के परमाणु है, माया के परमाणु है, वो खत्म होते हैं। आज जो पद गाया और जो आज सत्संग हुआ, वो हमारे अंदर वो परमाणु थे, तो वो सामने आए हमारे, ऐसा सही है? बिल्कुल।
ठीक है, तो वो जो है, जो आपने बोला है कि वो जो है वो चलता रहता है, जो है कि जो पहले का ज्ञान आदत पड़ी है, जो अभी का है, तो हाँ, ये वो उसका धीरे 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 दृष्टि आपकी, आपकी समझ, आपकी जो दर्शन है वो क्लियर होता जाता है। वो दर्शन जितना क्लियर होता है, फिर खुद का ही दोष दिखता है और सामने वाला निर्दोष दिखाई देता है। जहां तक दर्शन क्लियर नहीं है, वहां तक व्यक्ति दोषित दिखाई देता है। खुद का दोष नहीं दिखाई देता है, सामने वाले का दिखाई देता है। मतलब ये प्रैक्टिस करते करते ये जो है वो जो है वो दूसरा ये इसलिए पांच आज्ञा दी है ना। पांच आज्ञा का उपयोग जो करना है, पांच आज्ञा का जो एप्लीकेशन करना है, वो इतनी ज्यादा करने की है तो हमारे स्वभाव में आ जाए। अलग अभी अलग तो अलग हमको अलग अभ्यास एंगल करना है। अलग अलग एंगल से समझना चाहिए, ऐसा ऐसा सही है। हाँ, अलग अलग एंगल से। लेकिन एक बात पक्की है कि हिसाब हमारा है, हाँ, सामने वाला निमित्त है बस। हाँ, और वो दादाजी तो परमाणु के लेवल तक भी कभी बताते हैं ना, जो उन्होंने बताया था, जो वो रास्ता दूसरी तरफ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मूली के परमाणु हैं, उन्होंने खींच लिया हाँ, वो उनके परमाणु के अंदर, अधीन। वो मूली के और परमाणु उनके थे, तो इसलिए वो बराबर, उस रास्ते मारा गए थे। तो वो बराबर, तो फिर जो है उससे तो बिल्कुल एग्जैक्टनेस समझ में आती है दादाजी, सिर्फ बिल्कुल वक्त बिल्कुल। का वो उपयोग करना है अभी उनको हमको, फिट करना है। उनको वो सूक्ष्म जागृति की वजह से ख्याल आता है कि यहाँ ये मूली की आधार से मैं रास्ता भटक गया हूँ। मूली खींच गई, मूली खाने का बाकी था, तो वो इसी रास्ते पे ही मिलने वाली थी। तो हम्म। वो इसका जो हिसाब था, तो वो हिसाब पूरा करने के लिए कुदरत ने ही वो रास्ता भटका दिया, कुदरती रूप से। लेकिन दादाजी को वो बोलते हैं कि जो है चोर चोर भी जो है वो दुनिया के लिए विटामिन है, उन्होंने बताया। वो लेकिन और उन्होंने बराबर, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताया कि चोर विटामिन कैसे है दुनिया के लिए। बोले कि भगवान तो कोई आपके गलत पैसा को छेड़ेगा नहीं, जो आके उसको करेगा नहीं, तो वो काम चोर का बिल्कुल है। बिल्कुल। चोर जो है वो ये नहीं होगा तो दुनिया चलेगी नहीं, वो ऐसा बताया उन्होंने। ये तो, बराबर, हाँ, ये सभी तो आवश्यक बताया है। ये कुदरत की हाँ व्यवस्था है। ये चोर जो है, जैसे ड्रेनेज होती है ना घर में, हाँ बाहर भी होती है, तो वो संसार में जितनी भी अशुद्धि है वो ड्रेनेज में जाती, वो दिखाई नहीं देती। नहीं, नहीं, वो अशुद्धि को शुद्ध करने की व्यवस्था है ड्रेनेज लाइन। तो इसी तरह ये संसार में जितने चोर है, लबाड़ है, जो कोई भी है, वो भी ड्रेनेज लाइन जैसे है। वो सबकी शुद्धि करते हैं, हिसाब की। लेकिन दादाजी को ऐसा ऐसा कैसे ये सब दिख जाता था, हमारे को क्यों नहीं ये सब दिखता ये क्या दिख इतना जाता है? मतलब उनको, मतलब उन्होंने ये बोला कि चोर भी जो है वो विटामिन है दुनिया के लिए, हम्म। वो उनको ये सब उनकी दृष्टि में आया, हमारे दृष्टि में ऐसा ऐसा क्यों नहीं आता? और क्यों नहीं आता है कि उनकी जो दर्शन वो क्लियर हो गया था। क्लियर है तो बात जैसी है वैसी उसको समझ में आती है, और वाणी में भी वैसा निकल जाता है। तो हमको कभी ऐसा समझ में नहीं आया, क्योंकि हम जो देखते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, ये दो ही भाषा में हम समझ सकते हैं। और जगत में ये दो ही व्यू पॉइंट होते हैं, ये अच्छा है ये गलत है। तो चोर को हम गलत कहते थे कि ये गलत है, ये चोरी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लोगों को हैरान कर रहा है। तो दादा भगवान की दृष्टि कुछ और ही अलग थी। तो कि हर एक मतलब उन्होंने व्यक्ति की,
उनको उनको ये जैसा है वैसा दिखता है, मतलब उनके ऊपर उनके दृष्टि में जो है वो आवरण नहीं है, ऐसा ऐसा है, और हमारे में आवरण नहीं है वो। अच्छा। बोलते हैं 356 तक खुल गया है। हम्म। हाँ, तो वो उसकी बानी ऐसे ही निकलती है। नहीं तो ये तो भोगवे उसकी भूल बनी तेज न्याय क्या थी आवे। तो हमारे ही आवरण धीरे धीरे करके निकलेंगे, तब हमारी भी दृष्टि ऐसे स्पष्ट होगी, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमको अच्छा, भी वही केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और वो रास्ते पे हम ज्ञान लिया है, तब से वो रास्ते पे निकल पड़े। और जितनी ठीक। जितनी 5 आज्ञा आपको अनुभव में आती है, आत्मसात होती है, उतना उतना आपका केवल ज्ञान की डिग्रियां बढ़ती जाती है। ठीक। समझे? धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, दीपकानंद जी, दीपकानंद जी, ચાલો નથી. આવી ગયા લો. Okay, now Desachidanand, બિહારીઆનંદજી, આપણે હા. હમણાં આજથી નવો પુરુષાર્થ શરૂ કર્યો છે. આહારી દેશચિદાનંદ, આજથી આપણે નવો પુરુષાર્થ શરૂ કર્યો છે. આખા દિવસનો આહારીને, વિહારીને, નિહારીને જોવાનો. બહુ વિગતમાં નહીં જવાનું, પણ છૂટાપડાના એક પ્રયોગ માટે આ ગોઠવણી કરી છે કે આખા દિવસ જે આહાર વિહાર નિહારની પ્રક્રિયા થાય છે, વિક્રિયાઓ થાય છે, એને જોવાનું. આહારમાં તો આપણે 6 રસો કીધા છે. વિહારમાં શરીર વિહારી છે, વાણી વિહારી છે, ચિત્ત વિહારી છે, એને જોવાનું. અને નિહારમાં તો બાથરૂમ જે જાય છે, તો એના સંબંધી જરા સમજણ આપો ને, જય સચ્ચિદાનંદ. તો આજે આહારી વિહારી અને નિહારીને જોવાનો જે આખો પ્રયોગ છે, એટલે કે તમે શુદ્ધાત્મા છો, શુદ્ધાત્મા થયા, તમારો સ્વભાવ ખુલ્લો થયો જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો, તો હવે તમારી પાસે જે સાધન છે મન વચન કાયા રૂપી, એ મન વચન કાયા રૂપી જે સાધન છે એના જ આ બધા આહાર છે, બધા વિહાર છે અને બધા નિહાર છે. એ મન વચન કાયાના જ છે બધા. એટલે એ બધા પૂતગલ પરમાણુ જે કંઈ પણ અજ્ઞાન દશામાં બોડી સ્વરૂપે ભેગા થયા છે, એ સમય સમયે નિમિત્તને આધીન એ જ પરમાણુ પાછા ખાલી થઈ રહ્યા છે. અને પરમાણુ ખાલી થતા થતા એ શરીર તમારું હલકું ફૂલ થઈ જાય. અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો જે પ્રયોગ છે, એ પ્રયોગ ફાઇલ નંબર 1 ના રેફરન્સમાં જ થયા કરે, ફાઇલ નંબર 1 ના રેફરન્સમાં જ બન્યા કરે. એ આ આહારી વિહારી અને નિહારીને જોવાનો પ્રયોગ છે. એટલે દાદા ભગવાન અનેક ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવીને એક ઉપર, ફાઇલ નંબર 1 ઉપર આખી દ્રષ્ટિ મૂકે છે. કારણ કે તમારે આ જ જોવાનું છે કે છે, ફાઇલ નંબર 1 ને જોવાની છે. તો ફાઇલ નંબર 1 માં તમે શું જોશો? તો એનો આહાર. હવે આહાર તો સ્થૂળ આહાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ આંખોનો છે, કાનનો છે, નાકનો છે, બધા એનો આહાર તો છે ને, અલગ અલગ અલગ. તો કે એ બધા જ જે આહાર છે, એ બધા જ આહાર આ ફાઇલ નંબર 1 ના છે. અને હું શુદ્ધાત્મા છું,
એ નિરંતર પ્રયોગ બન્યો રહે, નિરંતર એનો અનુભવ થયા કરે, એટલા માટે આ આહારી, વિહારી અને નિહારીને જોવાનો આખો પ્રયોગ મૂકેલો છે. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર જ લાવે છે. જે કઈ છે તમારું જગત એ ફાઇલ નંબર 1 છે. બરાબર? બહુ સરસ, ફેન્ટાસ્ટિક, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો આમાં દીપકાનંદજી આ પ્રયોગમાં થોડું વધારે ફોડ પાડો કે આ તો આપણે હાલતા ને ચાલતા જ નાતા દ્રષ્ટ કરવાનું છે, બરાબર? તો કારણ કે આપણે છે જ ને ત્યારે આનંદજી. હા, હાલતા ને ચાલતા કરવાનું છે. ના, એટલે હલતા ચાલતામાં એ છેલ્લું સ્ટેજ છે. જે રીતે પીએચડી થયા તો પીએચડી થવાનું બરાબર, પણ શરૂઆત તો તમારે એકાએક ઘૂંટવાનું, બેસીને શિક્ષક જે રીતે સમજાવે, શિક્ષક જે રીતે બતાવે એ રીતે કરવાનું હોય છે. એવી રીતે આ ફાઇલ નંબર 1 ના આહાર, વિહાર ને નિહાર જોવા માટે સામાયિકનો પ્રયોગ છે. ફાઇલ નંબર 1 ને જોવાનો પ્રયોગ છે. પછી વિધિ, એ વિધિ કરીએ ત્યારે એ ચિત્ત હાજર હોય, વંચાય, તો કે એ બધા પ્રયોગ ફાઇલ નંબર 1 ને જોવાના જ છે. અને આ કરતા કરતા છેવટે એટલું સહજ થઈને ઊભું રહેશે કે હરતા ફરતા ઉઘાડી આંખનું આખું સામાયિક ને ઉઘાડી આંખે આખું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદનો અનુભવ રહ્યા કરશે. તો બિહારી આનંદજી આમાં બરાબર છે. આ તો આપણે સામાયિકમાં બેસીએ કે આપણે વિધિ કરીએ ત્યારે બરાબર. પણ હવે આપણે સવારે ઉઠ્યા એનું કઈ કરવાનું કે પછી આપણે નહીં, તો આખું બધું જ આવી જાય ને. બસ એકે એક ક્રિયા, આહારી, વિહારીની ને નિહારી, આ બધી જ ક્રિયાઓ એની મેળે થયા કરે છે. રાઈટ, રાઈટ. એ થયા કરે છે, એનો અનુભવ આપણે કરવાનો છે. અત્યાર સુધી હું કરું છું, મારે કરવું પડશે, એના આધારે આપણે કર્યા કરતા હતા, કરતા થઈ જતા હતા. બરાબર. તો કે હવે આ ત્રણેય ક્રિયાઓ થઈ રહી છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એનાથી તદ્દન નોખો એવો. તો કે એ અનુભવ કરવાનો, એ અનુભવ દશા ઉપર આવવાનો આપણો આ પ્રયોગ છે. એ ધીરે 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 ત્યાં પહોંચાશે, કારણ કે હજુ એટલી જાગૃતિ નથી ને. હા, બરાબર. તો આખો માર્ગ જાગૃતિનો છે. હા, પણ કર્મો એવા ભારે ભારે લઈને આયા છે દરેક જણ, એટલે એની પાછળ એનો ટાઈમ જાય, બધું જ જાય, એ બધું થયા જ કરે. પણ આ એક એક ક્રિયા આપણને નડતી નથી. પણ એ ક્રિયા વખતે જાગૃતિ જે હોવી જોઈએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો એ જાગૃતિનો અભાવ છે. એટલે 100% જાગૃતિ એટલે એ કેવળ જ્ઞાન. બરાબર. તો મહાત્માઓ, આ તમે સાંભળ્યું ડેફિનેશન, તો આમાં કઈ ક્વેશ્ચન છે કે શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું? કોઈ છે ક્વેશ્ચન? પ્લીઝ ક્લેરિફાય કરજો તો આપણે સરસ રીતે નાતા દ્રષ્ટા અને સામાયિક ને બધું થાય. ઓકે, નો ક્વેશ્ચન. બરાબર. ગીતાબેન ઓકે? પ્રજાપતિ. હા, હજુ ફાઇલ 1 ને જુદું જોવાનું હજુ પ્રયોગ નથી, એટલે આમ ક્રિયામાં હજુ ઇન્વોલ્વ થઈ જવાય છે. ગીતાબેન નો અવાજ આવતો નથી. ગીતાબેન જરા જોરથી બોલો, અવાજ ક્લિયર નહીં આવતો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હજુ ઓછો આવે છે.
ખબર નહીં હવે આવે છે હવે આવે છે. હા, એટલે માઇક તરફ મોઢું રાખજો. હા, એટલે હજુ ક્રિયામાં હજુ ઇન્વોલ્વ થઈ જવાય છે. દરેક ક્રિયા વખતે એવું નથી હોતું કે આ આહારી આહાર કરે છે, વિહારી વિહાર કરે છે, નિહારી નિહાર એ કરે તો બહુ છે. મોટી જાગૃતિ છે. આપણે તો ખાલી વિધિ કરીએ છીએ કે હા આવું હો, આવી જાગૃતિ હો, આવું રે, એવી આપણી વિધિ છે. પણ એ વિધિ કર્યા પછી જે જાગૃતિ રહેવી જોઈએ, તો કે એ ત્યાં આગળ આપણે તકલીફ પડે છે. એટલે બધું લેપાયમાન થઈ જાય બધું જ. ને આ વિહારી ખ્યાલ વિહાર આવે? કરે છે એના પર હા એટલે લેપાયમાન વિહારી થઈ જાય. વિહાર કરે છે એ તો સ્થૂળ પહેલા આપણે દાખલા કે જાત્રામાં ગયા, રોજ રોજ ચાલતા હોય, બધું કરતા હોય, ઘરમાં વિહાર તો ચાલતો જ હોય છે. તો કે આ સ્થૂળ ચાલતો જ. શરીરનું. પછી મન પણ વિહાર કરે છે, હા ચિત્ત પણ વિહાર કરે છે, બધાનો જ વિહાર ચાલુ છે. હા તો કે એ બધા વિહારી વિહાર કરે છે, નિહારી નિહાર કરે છે. એટલે કાનમાંથી મેલ આવે, આંખમાંથી આવે, નાકમાંથી આવે, બધેથી એ નિહાર જ કચરો જ બહાર આવે છે આખા શરીરમાંથી. એ હા પરસેવા સ્વરૂપે હોય, પેશાબ સ્વરૂપે હોય, જાડો પેશાબ, બધી તે બધું એ જ છે ને, એ નિહાર જ હા છે. એ જ છે. હા, એક વસ્તુ આ એક એટલે ક્લિયર થઈ કે આહારી આ વસ્તુ એક ક્લિયર થઈ કે એટલું અત્યાર સુધી એવું જ સમજમાં હતું કે આહારી એટલે ખાલી ખોરાક જે લઈએ છીએ એ જ આહારી. આ નાકનો, કાનનો આ બધો જે આહાર છે એ તો ખબર જ નથી. હા, કારણ કે નાકનું આમ સુગંધ આવતી હોય, હા તરત આંખને બધું જોવાનું ગમે, સારું સારું ખેંચાયા કરે. કાનનો સ્વભાવ, બેઠા હોઈએ, સરસ ગાયન વાગતું હોય, તો એનો આહાર મળી રહે છે ને એને. હા મળી રહે છે. તો કે આ દરેક ઇન્દ્રિયોનો આહાર છે, ખાલી સ્થૂળ શરીરનો નહીં, દરેક હા આખી ઇન્દ્રિયોનો આહાર છે. એટલે જ્ઞાન બોલો ચિત્ત વિહારી, ચિત્ત વિહાર કરે છે. હું નિર્વિહારી એવો શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. શરીર વિહારી, મન વિહારી, આ બધાનો વિહાર છે. હવે આપણે આપણા સ્વભાવમાં આવીને આ બધાને જાણવાનું છે, જોવાનું છે. એટલે અભ્યાસ કર્યા કરવાનો છે. હા અને જેમ જેમ જાગૃતિ વધે એમ એમ અભ્યાસ વધતો જાય. અને જ્યાં સુધી જાગૃતિ ના ઊભી થાય ત્યાં સુધી એ અભ્યાસ કાચો પડે. એવું નહીં કે અભ્યાસ વધે એમ જાગૃતિ વધે. હા, જાગૃતિ વધે એમ અભ્યાસ વધે, અને જેમ જેમ અભ્યાસ વધતો જાય એમ એમ તમારી જાગૃતિ એ વધતી જાય. અભ્યાસ વગર તો જાગૃતિ કેવી રીતે વધે? હા, તો કે ભાઈ તમારે જોવાનો અભ્યાસ વધ્યો એટલે ઓટોમેટિક જાગૃતિ વધતી જાય. જાગૃતિ વધે. હા હા, જે સ્થૂળ દાખલામાં લઈએ તો કે સામે ઘરમાં તમે કઈક જોયું, બરાબર, હા તો એ જે તમે જોયું એના આધારે ફરી તમને જાગૃતિ રહે કે ફરી આ ટાઈમે આવું થશે. હા હા આવું ઘણું બધું થાય છે. હા, એટલે એ અભ્યાસના આધારે આધારે અભ્યાસ થાય, એટલે બંને ચાલ્યા કરે. એવી રીતે આપણી અંદર પણ છે. હા એટલે આખું આ વિજ્ઞાન ફાઇલ નંબર 1 ઉપર આવે છે. આખી જાગૃતિ ફાઇલ નંબર એક ઉપર.
અને હા. ફાઇલ નંબર 1 ઉપર જાગૃતિ રહેવી જોઈએ, પણ એ રહેતી નથી. હમ. કારણ કે અનેક ચિત્ત થયેલું છે. શું છે? હમ. અનેક ચિત્ત ચિત્તના થયેલું છે. એટલું હા. બધું ચિત્ત વેરણ ચેરણ થયેલું છે કે હમ. બધું એમાં જ રહ્યા કરે. આ લગન હોય તો 2-3 મહિના 2 મહિના શું રહ્યા કરે? આ બાજુ બધું હમણાં બાજુ મૂકો, બધું પહેલા આ પતાવો. હા. પત્યા એ પછી પણ રીતે એવું જ આખું હોય આવે, કે આ કારણ કે થયું બધા નથી. વ્યવહાર બાકી છે ને. હા, બાકી છે. એટલે એ જાત જાતના બધા વ્યવહાર આયા કરે. હમ. ખાલી સાસુમાં બીમાર પડે તોય આખું બદલાઈ જાય. બદલાઈ જાય. હસબન્ડ ને કંઈક હા. થાય કે ઘરમાં કોઈને કંઈક થાય તો બધું, એટલે આખી જાગૃતિ એ તરફ જતી રહે. હા, બરાબર છે. એક જ સંજોગ બદલાય એના આધારે ઘરના બધાના સંજોગ બદલાઈ જાય. પણ બદલાઈ હવે જાય છે. એ હા. સંજોગ આપણને હેરાન નથી કરતો, પણ આપણે એના તરફ એટલું બધું ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છે હમ. કે જ્યાં આ જ સર્વસ્વ છે. હા, તો કે ના, એવું વ્યવહારથી દેખાય. જે વ્યવહાર કરવો પડે, વ્યવહારથી જે ફરજ બજાવવી પડે, એ બધી ફરજ બજાવવાની છે. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો એ નોર્મલ ભાવે આખો આ વ્યવહાર થાય હમ. એ રીતે એ અભ્યાસથી આવે. હા. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર છે. બહુ સરસ. તો આપણે આરતીબેન, હેમુબેન, સરોજબેન, પૂજાબેન, કઈ ક્વેશ્ચન છે? ક્લેરિફિકેશન તો આપણું બરાબર સામાયિક થાય, એક્સપેરિમેન્ટ થાય. આરતીબેન, હેમુબેન, સરોજબેન, પૂજાબેન, બોલો હેમુબેન, અનમ્યુટ કરો. આપણે હા, જય સચિદાનંદ વિનંતી. જય આપણે સચ્ચિદાનંદ. ટ્રેનમાં આ બીજો ટોપિક છે. ટ્રેનમાં આપણે સત્સંગ જે કર્યો હતો ને, એ સત્સંગ મેં હમણાં હા, 2-3 દિવસ પહેલા સાંભળ્યો. તો બરાબર. એમાં સત્સંગમાં એવું હતું, તમારો જ સત્સંગ હતો. એમાં હતું કે મનુષ્યમાં જ આત્મા છે. બહુ યાદ નથી મને, આત્મા છે કે જીવ છે? જીવ ને આત્માનો શું ડિફરન્સ છે? અને આમ તો આત્મા એ કાયમની વસ્તુ છે. અને આપણે બધા બોલીએ જીવ નીકળી ગયો, એટલે એ જે બાકીના જે 5 તત્વો છે, પ્રાણવાયુ છે, આ વાયુ છે, બધા જે એ જયારે શરીરમાંથી નીકળી જાય, હવે જીવ નીકળી ગયો એટલે આમ તો આત્મા જ નીકળી જાય છે. પણ વ્યવહારની ભાષામાં એવું બોલાય છે કે ભાઈ એમનો જીવ નીકળી ગયો, એ તો ગયા. એટલે આમ બંને એક જ છે સાદી ભાષામાં, બંને એક જ છે. એક જ છે. તો પછી એવું સત્સંગમાં હતું કે ખાલી મનુષ્યમાં જ આત્મા છે, જાનવરમાં નથી. ના ના ના, એવું નથી. એવું સત્સંગમાં હોય નહીં. ના, તમે બરાબર અમારા હેમુબેન પાછા બરાબર સાંભળજો. એ નથી, કારણ કે એ આઈ થિંક પરેશ આનંદજી કોઈ નહોતો, એ તો વધારે ક્લેરિફિકેશન થયું હતું એમાં, એટલે પાછું સાંભળજો તમે. 8મા નંબરનો જે ટ્રેનનો સત્સંગ છે ને, આ બિહારીનાથજીનો છે, એમાં ઓકે, બરાબર. સાંભળ્યું પણ હતું. એમાં એવું તો હોય જ નહીં કે ભાઈ હા મનુષ્ય તો છે કશામાં આત્મા નથી, એવું તો ના હોય. એ તો હા સિદ્ધાંત જ આખો ખોટો પડે. એટલે હા કઈક સમજવામાં ભૂલ હા થઈ હશે. એટલે પછી મને થોડું અંદર ઊભું થયું હતું કે હા, ના, એટલે એ કંઈક જાનવરમાં નથી. સમજવા માટે આહા, બરાબર. હું ફરી ફરી સાંભળજો સાંભળી એટલે લઈશ. હા, હું ફરી સાંભળી લઈશ યાર. સારું. જે અને જે હવે આહારી આહાર કરશું, આહારી આહાર કરે તો વિહારી વિહાર કરશું, નિર્વિહારી માત્ર તેને જાણું છું. તો વિહારીમાં શું શું આવે? જેવું આહારીમાં કાન ને બધું આવ્યું, તો
ના એટલે વિહારીમાં હેમુબેન ચાલે, હેમુબેન નું ચિત્ત બધે ભટકે, એ જ્યાં જ્યાં ફર્યા કરે એ બધું વિહારી આવે. અને આહારીમાં આંખનો ખોરાક હોય, કાનનો ખોરાક હોય, નાકનો ખોરાક હોય, એટલે એ બધા ખોરાક લીધા જ કરે. આપણે તો પેલા સ્થૂળ ખોરાક એકલો જ જોઈએ, પણ ના, આંખનો પણ ખોરાક હોય છે. સાડીની દુકાનમાં ગયા હોય તો કેવું જોયા કરે, કેટલો આનંદ થાય, ફટાફટ લઈ લે. ફ્રેશ થઈ જાય, ભલે લેવાની ના હોય પણ યા 3-4 કલાક. એટલે એ ખોરાક છે. જોવાનું ગમે, સાંભળવાનું ગમે, બધું એ તો કે બધી ઇન્દ્રિયોના ખોરાક છે. બહુ મોટો ફૂડ છે આ તો. ખાલી આ બધું એટલું ધ્યાન રાખે, જમવા બેઠા તે જમવાનો જ ખોરાક લેવાનો. હા, ના, બધો બહુ ખોરાક છે, જાત જાતના. અને નિહારીમાં શું આવે? પાછું નિહારીમાં આવું જ ચિત્ત જ ભટકે બધું એ બધું. ના, નિહારીમાં આપણે જે શરીરમાંથી કચરો બહાર આવે છે ને, આંખમાંથી, નાકમાંથી, મોઢામાંથી, પરસેવા સ્વરૂપે, બાથરૂમ સ્વરૂપે, ટોયલેટ સ્વરૂપે, એ બધો નિહાર કહેવાય. નિહાર એટલે નિહારી નિહાર કરે છે, હું નિર્નિહારી માત્ર તેને જાણું છું. નિર્નિહારી એ શુદ્ધાત્મા. પુરંગલન બી કહેવાય એમાં? ના, પૂર્ણગલન આખી વસ્તુ જુદી છે, પણ આ નિહાર એટલે આ કચરો જે બહાર આવે છે. એટલે એ બધું ખાલી થાય. પૂરણ ગલન એટલે જે તમે જે પૂરણ કર્યું છે એ ગલન થાય. શ્વાસ લીધો એટલે પૂરણ થયું, તો એ ગલન થાય જ. પાણી બરાબર પીધું, બરાબર જમ્યા એટલે એ થોડા કલાકોમાં ગલન થાય જ. એટલે જે પૂરણ કર્યું હોય એ ગલન થાય. એટલે કર્મોનું પણ ભાવ સ્વરૂપે પૂરણ થાય અને ઇફેક્ટ સ્વરૂપે ગલન થાય. બરાબર? બરાબર? ચાલો, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો બિહારીજી શ્રીમંત બોલાવો, હેમુબેન ને ગીતાબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જયાણમ, નમો વજ્જયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સવ્વપાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસે, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા હોય પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિદેમાં મળીશું, તો પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી, મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદજી, જય સનગીતાબેન, જય રત્નિકાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ 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 જય રજનીકાંતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ હેમુબેન જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ, અરુણાબેન જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમાત્માઓને જય સરોજબેન જય સચ્ચિદાનંદ લીલાબેન જય સચ્ચિદાનંદ જય પૂજાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સજ્જન બોલો, જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ